Hello everyone. Welcome to Legal Update. Today's topic for discussion is Doctrine of Estoppel in Arbitration. Why news? Recently, the Supreme Court in Sanchit Singh Salwan and others versus Sardar Indrajit Singh Salwan and others held that once parties voluntarily consent to arbitration and a consent decree is passed, they are stopped from later challenging the award on the ground of non-arbitrability. Background of the case: the dispute arose among trustees of the Guru Tegh Bahadur Charitable Trust. The respondents filed a suit for perpetual injunction, but the trial court rejected the plaint under Order 7 Rule 11 CPC, holding it barred by Section 92 of the Civil Procedure Code. During appeal, the parties agreed to resolve the dispute through arbitration and sought disposal of the appeal based on a consent decree. The appellants later sought interim measures under Section 9 of the Arbitration Act in terms of the award. The respondents opposed, arguing that trust disputes are non-arbitrable. Both the Commercial Court and the High Court accepted this plea, declaring the award a nullity. The appellants moved to the Supreme Court. What were the court observations? The bench, comprising of Justice Augustine George Massey and Atul S. Chandurkar, noted that the respondents had accepted the consent decree, benefited from it, including withdrawal of an FIR and receipt of money, and therefore could not later deny its validity. The court applied the doctrine of estoppel by conduct and election, which states that once a party has approbated a decree, they cannot reprobate it. The court emphasized that allowing such a plea would undermine the principle of finality in arbitration. The appeal was allowed and execution of the consent decree was revived. What were the provisions involved? Section 9 of the Arbitration and Conciliation Act 1996, which states that court may grant interim measures in arbitration proceedings. Once parties submit to arbitration, they cannot later claim the dispute was non-arbitrable. Second, Order 7 Rule 11 of CPC, which relates to rejection of plaint in specific circumstances. Third, Section 92 of the Civil Procedure Code, which deals with special jurisdiction of courts in trust-related matters. And last, doctrine of estoppel, which means a party cannot deny or contradict what it has previously accepted and benefited from. It's the time for practice question. The doctrine of estoppel means: Option A, a party cannot contradict what it has previously accepted. Option B, a decree is automatically binding on third parties. Option C, arbitration award can never be challenged. And option D, consent decree always overrides statutory bar. Pin down your answers in the comment section below. लीगल अपडेट प्रोग्राम में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है मध्यस्थता में एस्टोपल का सिद्धांत। आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संजीत सिंह सलवान और अन्य बनाम सरदार इंद्रजीत सिंह सलवान और अन्य मामले में यह निर्णय दिया कि जब पक्षकार स्वेच्छा से मध्यस्थता के लिए सहमति देते हैं और एक सहमति आदेश यानी कंसेंट डिक्री पारित किया जाता है, तो वे बाद में पुरस्कार या अवार्ड को गैर मध्यस्थ या नॉन आर्बिट्रेबिलिटी के आधार पर चुनौती देने से रोक दिए जाते हैं। आइए अब जानते हैं मामले की पृष्ठभूमि को। यह विवाद गुरु तेग बहादुर चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टियों के बीच उत्पन्न हुआ। प्रतिवादियों ने स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद दायर किया, लेकिन निचली अदालत ने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत वाद को खारिज कर दिया और इसे सीपीसी की धारा 92 के तहत वर्जित माना। अपील के दौरान पक्षकारों ने मध्यस्थता के माध्यम से विवाद को हल करने पर सहमति जताई और एक सहमति आदेश यानी कि कंसेंट डिक्री के आधार पर अपील के निपटारे की मांग की। बाद में अपीलकर्ताओं ने पुरस्कार के संदर्भ में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत अंतरिम उपायों की मांग की। प्रतिवादियों ने इसका विरोध करते हुए तर्क दिया कि ट्रस्ट विवादों पर मध्यस्थता नहीं की जा सकती। वाणिज्यिक न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने इस दलील को स्वीकार करते हुए निर्णय को अमान्य घोषित किया। अपीलकर्ता सर्वोच्च न्यायालय चले गए। आइए अब जानते हैं न्यायालय की टिप्पणियों को। न्यायमूर्ति अगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति अतुल एस चंदोरकर की खंडपीठ ने कहा कि प्रतिवादियों ने सहमति डिक्री को स्वीकार कर लिया था, इससे लाभान्वित हुए थे, एफआईआर वापस लेने और धन प्राप्ति सहित, और इसलिए बाद में इसकी वैधता से इनकार नहीं किया जा सकता था। न्यायालय ने आचरण और चुनाव द्वारा विबंधन के सिद्धांत को लागू किया। एक बार किसी पक्ष ने किसी डिक्री को अनुमोदित कर दिया तो वह उसे रद्द नहीं कर सकता। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी दलील को स्वीकार करने से मध्यस्थता में अंतिमता का सिद्धांत कमजोर हो जाएगा। अपील को स्वीकार कर लिया गया और सहमति डिक्री का निष्पादन पुनः शुरू कर दिया गया। आइए अब नजर डालते हैं शामिल प्रावधानों पर। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996।
धारा 9, न्यायालय मध्यस्थता कार्यवाही में अंतरिम उपाय प्रदान कर सकती है। सिद्धांत, एक बार जब पक्षकार मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं तो वे बाद में यह दावा नहीं कर सकते कि विवाद मध्यस्थता योग्य नहीं था। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सीपीसी, आदेश 7 नियम 11, विशिष्ट परिस्थितियों में वाद पत्र की अस्वीकृति। धारा 92, ट्रस्ट से संबंधित मामलों में न्यायालयों का विशेष अधिकार क्षेत्र। एस्टोपल का सिद्धांत, कोई भी पक्ष उस बात से इनकार या उसका खंडन नहीं कर सकता जिसे उसने पहले स्वीकार किया है और जिससे उसे लाभ मिला है। आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। एस्टोपल के सिद्धांत का अर्थ है विकल्प ए, कोई भी पक्षकार पहले स्वीकार की गई बात का खंडन नहीं कर सकता। विकल्प बी, कोई भी निर्णय तीसरे पक्ष पर स्वतः बाध्यकारी होता है। विकल्प सी, मध्यस्थता निर्णय को कभी चुनौती नहीं दी जा सकती। विकल्प डी, सहमति निर्णय हमेशा वैधानिक प्रतिबंध को रद्द कर देता है। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।